Good morning, students. Minerals and energy resources. This is the fifth chapter of geography, and it's very important chapter for your upcoming NTSC exam. You already have studied this chapter, but in this video, just we will revise this chapter. Minerals and energy resources. So let's start with the example: a bright smile from toothpaste and minerals. Your toothpaste is made up of so many minerals. For example, toothpaste cleans your teeth due to abrasive minerals like silica, limestone, aluminum oxide, and various phosphate minerals do the cleaning. So the question is formed from here that give the example of abrasive minerals or which minerals are used for cleaning. So these are the minerals. Fluoride, which is used to reduce cavities, comes from mineral fluorite, right? Fluoride comes from fluorite. Most toothpaste are made white with titanium oxide. Titanium oxide, which comes from minerals called rutile, ilmenite, and anatase. The sparkle in some toothpaste comes from mica. The toothbrush and tube containing the paste are made up of plastics from petroleum. So in this way, we have understood the use of minerals even in a small and very mini commodity. So now all living things need minerals. Life processes cannot occur without minerals. Although our mineral intake represents only about 0.3% of our total intake of nutrients, they are so potent and so important that without them we would not be able to utilize the other 99.7% of foodstuffs. मतलब सीधा सा है कि अगर आपको इतना मिनरल नहीं मिलता है तो आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं 99.7% उनका यूज भी नहीं हो सकता है. So first of all, what is mineral? Minerals are an indispensable part of our lives. Almost everything we use, from a tiny pin to a towering building or a big ship, all are made from minerals. The railway lines and the tarmac of the roads, our implements and machinery too are made from minerals. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके आसपास में, आपके घरों के विंडोज़, आपकी घर में बिल्डिंग में जो रोड्स लगी होती हैं लोहे की होती हैं, राइट? एंड सो मैनी थिंग्स वी यूज़ मेड अप ऑफ मिनरल्स. सो व्हाट इज़ मिनरल? यहाँ देखते हैं मिनरल की डेफिनेशन. इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन. जियोलॉजिस्ट जो है वो मिनरल को डिफाइन करते हैं. मिनरल एज a homogeneous naturally occurring substance with a definable internal structure. धरती के नीचे या अर्थ सरफेस के नीचे पाए जाने वाले ऐसे नेचुरली सब्सटेंसेस जो कि होमोजेनियस होते हैं. होमोजेनियस मीन्स दे आर मेकिंग प्रोसेस इज सिमिलर. जो उनका एक तरह से फॉर्मेशन प्रोसेस है वो सिमिलर है. मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म्स इन नेचर. जैसे हार्डेस्ट डायमंड, डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल एंड टाल्क इज द सॉफ्टेस्ट. सो वाई आर दे सो वेरिड? आपने पहले पढ़ा होगा रॉक्स के बारे में कि रॉक्स क्या होती हैं. रॉक्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ होमोजेनियस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स. रॉक्स मिनरल से ही बनी होती हैं. सम रॉक्स फॉर इंस्टेंस लाइमस्टोन कंसिस्ट ऑफ सिंगल मिनरल ओनली. लाइमस्टोन में एक ही मिनरल होता है. इस तरह से बहुत सारी रॉक्स हैं जिनके अंदर कई सारे मिनरल्स होते हैं. ऑल्दो ओवर 2000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, ओनली अ फ्यू आर अबेंडेंटली फाउंड इन मोस्ट ऑफ द रॉक्स. ज़्यादातर जो रॉक्स में मिलते हैं, फॉर एग्जांपल कोल, लाइमस्टोन एंड अदर मिनरल्स लाइक आयरन ओर, इस तरह के मिनरल्स काफ़ी बड़ी प्रोपोर्शन में मिलते हैं. 2000 मिनरल्स अभी तक आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, आपको याद रखना है. A particular mineral that will be formed from a certain combination of elements depends upon the physical and chemical conditions under which the material forms. This in turn results in a wide range of colors. कितने सारे अलग अलग फॉर्म्स के मिनरल्स मिलते हैं. कलर्स में डिफरेंट होते हैं, हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म्स, लस्टर,
and density that a particular mineral possesses. Geologists use these properties to classify the मिनरल्स कि कितने टाइप के मिनरल्स होते हैं, तो वो क्लासीफाई करते हैं उनके कलर, हार्डनेस और क्रिस्टल फॉर्म्स के बेस पे. सो इन दिस वे मिनरल्स आर फाउंड ऑफ वेरियस टाइप्स. हाउएवर फॉर जनरल एंड कमर्शियल पर्पजेज मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर. अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उससे पहले कि मिनरल्स कहाँ मिलते हैं इसको क्लासिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि जियोलॉजिस्ट यानी कि जियोग्राफर और जियोलॉजिस्ट और जियोग्राफर दोनों मिनरल्स की अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, अलग अलग उनको कैटेगराइज करते हैं. जियोग्राफर दिस इज़ द पार्ट ऑफ SST सोशल स्टडीज़. तो जियोग्राफर्स क्या करते हैं, मिनरल्स को एक तरह से अर्थ क्रस्ट का पार्ट मानते हैं. एंड for a better understanding of landforms, the distribution of minerals, resources and associated economic activities are of interest to geographers. Geographers ये देखते हैं कि मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, मिनरल्स किस काम आते हैं, उनका इकोनॉमिक यूज़ क्या है और वो दिखने में कैसे हैं. और जियोलॉजिस्ट जो है, जियोलॉजिस्ट साइंस की ब्रांच है, तो जियोलॉजिस्ट ये देखेगा कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, मिनरल्स का कितनी एज इनकी है और फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन इनका क्या है. इट मीन्स साइंस में अभी आपने मिनरल्स पढ़े होंगे और SST में भी मिनरल्स पढ़ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ तो सिर्फ मिनरल्स का क्या करेंगे, मिनरल्स को सिर्फ देखेंगे कि कैसे होते हैं, इनकी फीचर्स क्या हैं, इनके यूजेस क्या हैं और कहाँ कहाँ मिलते हैं. राइट, जस्ट विल सी द डिस्ट्रीब्यूशन, देयर फीचर्स एंड देयर यूटिलाइजेशन. तो सिर्फ ये ज्योग्राफर में होता है और जियोलॉजिस्ट मतलब साइंस की ब्रांच, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा. आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं. मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स, वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड. ये जो मिनरल्स मिलते हैं ये कहाँ मिलते हैं. देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में. इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में कौन से मिनरल्स मिलते हैं, यहाँ पे क्रैक्स एंड क्रेविसेस, फॉल्ट्स और जॉइंट्स, यहाँ मिनरल्स जो है मिलते हैं. जो स्मॉलर ओकरेंसेस में होते हैं उनको वीन्स बोलते हैं और लार्जर ओकरेंसेस को लोड्स बोलते हैं. याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है. They are formed when minerals in liquid, molten and gaseous forms are forced upward through cavities towards the earth's surface. They cool and solidify as they rise. जैसे टिन है, कॉपर है, जिंक है, लीड है, etc. are obtained from veins and lodes. यानी कि ज़्यादातर ये हो गया मेटेलिक मिनरल्स. राइट, सो मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड हियर, इग्नियस, मेटामॉर्फिक रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स में देखते हैं कौन कौन से मिलते हैं. बेड्स और लेयर्स में मिलते हैं, क्रैक्स में मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर. कोयला, कोल एंड सम फॉर्म्स ऑफ आयरन ओर हैव बीन कंसंट्रेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर. अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स इंक्लूड जिप्सम, पोटैश सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट. दोनों टाइप के सॉल्ट वहाँ मिलते हैं. एंड दीज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एवोपरेशन स्पेशली इन एरिड रीजन्स. तो ये दो टाइप के हो गए. तीसरा ऑकरेंस मिलता है हमारा रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल. आपको याद रखना है, या बॉक्साइट मिलता है. क्या मिलता है, बॉक्साइट. और बॉक्साइट से क्या निकलता है, एल्यूमिनियम निकलता है. बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकलता है. सर्टेन मिनरल्स में ओकर एज एलुवियल डिपॉजिट, जिसको हम प्लेसर डिपॉजिट्स भी बोलते हैं. यहाँ पे गोल्ड, प्लेटिनम, टिन, सिल्वर एट्सेट्रा, ये प्रीसियस मेटल्स होती हैं सारी. गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम काफ़ी महंगे होते हैं. और ये यहाँ पे मेटेलिक जो मिनरल्स हैं एलुवियल डिपॉजिट्स में मिलते हैं, जिसको हम प्लेसर डिपॉजिट्स भी बोलते हैं. इसके बाद आता है ओशन वाटर्स. ओशन वाटर में आपको पता है कॉमन सोल्ट मिलता है, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन ये भी मिलते हैं. द ओशन बेड्स टू आर रिच इन मैंगनीज नोड्यूल्स. तो ये आपको याद रखने हैं. 1 2 3 4 एग्जाम्पल आपके यहाँ दे रखे हैं ओशन वाटर्स में, ये आपको याद रखने हैं. इसके बाद चलते हैं यहाँ पे. देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स. अब इसमें देखते हैं मिनरल्स, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल्स. मेटेलिक में दो टाइप के होते हैं, फेरस, नॉन फेरस. मेनली प्रीसियस को अलग से कैटेगरी बना रखी है, लेकिन ये नॉन मेटेलिक में आ जाते हैं, नॉन फेरस में आते हैं. सॉरी, नॉन फेरस में मेटल्स तो होते हैं, नॉन फेरस में आते हैं. फेरस क्या होते हैं, जिनके अंदर आयरन कंटेंट होता है, जैसे आयरन और मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट. आयरन और मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, इनके अंदर लोहा होता है. नॉन फेरस में लोहा नहीं होता. दे डोंट हैव द कंटेंट्स ऑफ आयरन.
तो कॉपर, लीड, टिन, बॉक्साइट एटसेट्रा, क्योंकि इनके अंदर लोहा नहीं होता लेकिन ये मेटेलिक होते हैं। इसी में हम प्रीसियस को ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, क्योंकि इनके अंदर भी लोहा नहीं होता है। सो आफ्टर दैट नॉन मेटेलिक, दे डू नॉट हैव मेटेलिक फॉर्म, माइका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन एटसेट्रा। एनर्जी minerals, it means from which we get energy, coal, petroleum, natural gas, these are energy minerals. So यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इट्स वेरी सिंपल। आगे चलते हैं, रेड होल माइनिंग। रेड होल माइनिंग ये एक माइनिंग का एक तरीका होता है जो स्पेशली मेघालय में यूज किया जाता है। वहाँ पे जो कोल डिपॉजिट्स हैं, उन कोल और आयरन दोनों से रिलेटेड है। इसके साथ साथ में लाइमस्टोन और डोलोमाइट एटसेट्रा भी यहाँ से निकाला जाता है। जोवाई और चेरापूंजी दोनों जगह मेघालय में। यहाँ पे कोल निकालने का एक तरीका होता है जो नैरो टनल जो है बनाई जाती हैं, और इसी को रेड होल माइनिंग कहते हैं। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ डिक्लेयर्ड सच एक्टिविटीज़ इलीगल एंड रिकमेंडेड दैट दीज शुड बी स्टॉप्ड फॉरथविथ। इनको रोका गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्योंकि ये नेचुरली नुकसान करती हैं और काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं और अनसेफ भी होती हैं, राइट। सो रेड होल माइनिंग इज डिक्लेयर्ड इलीगल, लेकिन आपको याद रखना है जोवाई, चेरापूंजी, कोल माइनिंग विद द रेड होल माइनिंग, क्लियर। आफ्टर दैट, इंडिया इज़ फॉर्चून टू हैव फेयरली रिच एंड वेरीड मिनरल्स रिसोर्सेज। इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, कुछ थोड़े कम मिलते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग, पेनिनसुलर रॉक्स कंटेन मोस्ट ऑफ रिजर्व्स ऑफ कोल, metallic minerals, mica, many other non-metallic minerals, sedimentary rocks on the western and eastern flanks of the peninsula. In Gujarat, Assam have most of the petroleum deposits. अंकलेश्वर में गुजरात के अंदर, आसाम में डिगबोई, नहरकटिया एटसेट्रा। राजस्थान विद द रॉक सिस्टम्स ऑफ पेनिनसुला हैज़ रिजर्व्स ऑफ मैनी नॉन फेरस मिनरल्स, जैसे लाइमस्टोन मिलता है राजस्थान में, काफ़ी बड़ी प्रोपोर्शन में सैंडस्टोन मिलता है। द वास्ट एलुअल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर ऑलमोस्ट devoid of economic minerals. These variations exist largely because of the differences in the geological structure, processes and time involved in the formation of minerals. तो dear students, आपको याद रखना है कि कौन कौन से पार्ट में किस टाइप के मिनरल्स मिलते हैं, यहाँ पे यही दे रखा है। इसके बाद आगे चलते हैं, लेट्स नो स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फ्यू मेजर मिनरल्स। कुछ मेजर मिनरल्स के हम यहाँ पे जानेंगे कि कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे इनके रिजर्व्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, राइट, और कहाँ पे इनकी माइनिंग की जाती है। सबसे पहले हम देख रहे हैं फेरस मिनरल्स की तरफ। फेरस मिनरल वो मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर आयरन कंटेंट होता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले दे रखा है आयरन ओर। आयरन ओर ये एक बेसिक मिनरल है, क्यों है, एंड दिस इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्यों बोला जाता है इसको बैकबोन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि आयरन ओर से ही वो चीज़ें बनती है जो दूसरी इंडस्ट्रीज में काम आती हैं, जैसे मशीन्स, बिल्डिंग, राइट, इक्विपमेंट्स, वेपन्स, टूल्स एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं, लगभग आयरन ओर से बनती हैं, तो इसलिए इसको बेसिक मिनरल बोलते हैं और बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोलते हैं। सो इंडिया इज इंडोर्ड विद फेयरली अबेंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर। बहुत ज़्यादा आयरन ओर इंडिया में मिलता है, और आयरन ओर बेसिकली मैग्नेटाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर होता है, जिसके अंदर 70% तक आयरन कंटेंट मिलता है, और इसके अंदर एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज़ होती हैं, स्पेशली वैल्यूबल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। हेमेटाइट दूसरी टाइप का आयरन ओर है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर। आपको याद रखना है कि इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा होता है, हेमेटाइट आयरन यूज़ होता है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 50 to 60% आयरन कंटेंट, और मैग्नेटाइट से थोड़ा सा पुअर क्वालिटी का ये होता है। आफ्टर दैट, ये आप पाई चार्ट देख रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर शोइंग स्टेट वाइज शेयर इन परसेंट। 2016-17 का डेटा है। सबसे ज़्यादा आयरन यहाँ पे उड़ीसा में 52% है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 16% आयरन निकलता है, कर्नाटका 14%, झारखंड 11%, और जो बाकी सारे स्टेट बच गए दे हैव 7% ऑफ आयरन प्रोड्यूसन। कुद्रेमुख कर्नाटका में बहुत ही फेमस आयरन और माइन सेंटर है, जहां से आयरन निकाला जाता है, अच्छी क्वालिटी का आयरन निकाला जाता है। दिस इज द ओनली 100% एक्सपोर्ट यूनिट ऑफ आयरन ओर। आपको याद रखना है, कुद्रेमुख से जो भी हम आयरन ओर निकालते हैं वो सारा का सारा हम एक्सपोर्ट करते हैं। कुद्रे मतलब होता है कन्नड़ लैंग्वेज में हॉर्स, याद रखना है आपको, कुद्रे इन कन्नड़ लैंग्वेज हॉर्स। द हाइएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका resembles the face of a horse. The Bailadila
ये हो गया बेलाडिला, मुख मतलब होता है माउथ, तो कुद्रेमुख हॉर्स के माउथ जैसा दिखने वाला ये पहाड़ी है कुद्रेमुख। बेलाडिला जो है ये लुक लाइक हम्प ऑफ ऑक्स, बेल ऑक्स, डिला मीन्स हम्प, तो ये हो गया इसका बेलाडिला नेम जो है। हम देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है, आपको बताया जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे। द मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया। नाउ विल स्टडी अबाउट मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया की इंडिया में कहाँ कहाँ पे आयरन निकलता है और उसकी जो मेन बेल्ट्स है वो कहाँ कहाँ है, राइट। द फर्स्ट बेल्ट इज ओडिशा झारखंड बेल्ट। आपको हेडिंग्स याद रखनी है। नंबर 1 ओडिशा झारखंड बेल्ट। ओडिशा झारखंड बेल्ट में मतलब ये जो है हेमेटाइट और यहाँ से मिलता है, और बादाम पहाड़ माइंस, मयूरभंज, केंदुझर, ये तीनों प्लेसेस ओडिशा में है। और इसके बाद इन एडजॉइनिंग सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है, यहाँ पे भी हेमेटाइट आयरन ओर मिलता है। गोवा और नौमुंदी ये भी झारखंड में है। तो यहाँ पे देखिएगा बादाम पहाड़, मयूरभंज, केंदुझर, दीज आर इन ओडिशा, सिंहभूम, गोवा, नौमुंदी, दीज आर इन झारखंड। सो दिस इज नोन एज ओडिशा झारखंड बेल्ट। आई विल शो इन द मैप ऑल्सो। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दो स्टेट में है, क्योंकि दुर्ग और बस्तर दोनों छत्तीसगढ़ में है, चंद्रपुर जो है वो महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का हेमेटाइट आयरन ओर मिलता है। बेलाडिला जो है ये छत्तीसगढ़ में, आपको याद होना चाहिए बेलाडिला, अभी हमने डिस्कस किया था, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, साउथ में है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, साउदर्न छत्तीसगढ़ में। द रेंज ऑफ हिल्स कंप्राइज ऑफ 14 डिपॉजिट्स ऑफ सल्फर हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन ओर। इट हैज़ द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज नीडेड फॉर स्टील मेकिंग। स्टील बनाने के लिए आपको याद रखना है सबसे अच्छी क्वालिटी का जो आयरन ओर मिलता है वो छत्तीसगढ़ से मिलता है। क्लियर। आयरन ओर फ्रॉम दीज माइंस इज एक्सपोर्टेड टू जापान, साउथ कोरिया वाया विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम सी पोर्ट है यहाँ पे, और यहाँ से ये आयरन ओर जापान और साउथ कोरिया में जाता है। याद रखना आपको कि इस बेल्ट से निकला हुआ आयरन ओर, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर से निकला हुआ आयरन ओर विशाखापट्टनम पोर्ट से जापान और साउथ कोरिया में भेजा जाता है। ये दो बेल्ट हो गई हैं। एक सबसे पहली बेल्ट थी ओडिशा झारखंड बेल्ट, दूसरी है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, तीसरी है बेल्लारी चित्रदुर्गा चिक्कमंगलुरु तुमकुरू बेल्ट। दिस इज बेल्लारी चित्रदुर्गा चिक्कमंगलुरु तुमकुरू बेल्ट। ये सारे के सारे प्लेसेस कहाँ हैं? कर्नाटका में है। और इसी बेल्ट में कुद्रेमुख माइंस भी है, जिसका हमने अभी डिस्कस किया था। कुद्रेमुख, कुद्रे मीन्स हॉर्स, लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका। 100% एक्सपोर्ट यूनिट है ये, जैसे मैंने आपको बताया था कि अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर यहाँ मिलता है, और सारा का सारा हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। सो द ओर इज ट्रांसपोर्टेड एज स्लरी थ्रू अ पाइपलाइन टू अ पोर्ट नियर बेंगलुरु। स्लरी होता है कि इसको जब हम पिघला देते हैं, रिफाइंड कर पिघला देते हैं, उसके बाद में स्लरी बन जाता है और पाइपलाइन से इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। लास्ट बेल्ट है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट में गोवा तो पूरा आ गया और महाराष्ट्र में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट आ गया। सो दो द ओर्स आर नॉट वेरी हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के नहीं है ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी ये कुछ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता है। और मार्मागांव जो पोर्ट है गोवा के अंदर, वहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। सो दिस वॉज अबाउट आयरन ओर एंड इट्स बेल्ट। मैंगनीज इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, फेरो मैंगनीज अलॉय। नियरली 10 kg ऑफ मैंगनीज, 10 किलो मैंगनीज की ज़रूरत पड़ती है जब हम 1 टन स्टील बनाते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स। ये चीज़ें भी बनाने के लिए मैंगनीज का यूज़ होता है। यू हैव टू रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, सी दिस पाई चार्ट। इसमें दे रखा है 2016-17 में जो मैंगनीज प्रोड्यूस हुआ, ये भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा 25% ईच, कर्नाटका 11%, आंध्र प्रदेश 10%, अदर स्टेट्स 2%। तो याद रखना है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मैंगनीज हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा फेरस मिनरल्स के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं एक बार ये मैप, यहाँ पे है कुछ मिनरल्स के बारे में। तो आयरन और फील्ड्स, जैसे आपको बेल्ट बताई गई थी, 4 बेल्ट्स हैं। ये सबसे पहली बेल्ट होगी ओडिशा झारखंड बेल्ट। इसके बाद हमने ये बेल्ट की थी दुर्ग बस्तर छत्तीसगढ़, ये सॉरी चंद्रपुर बेल्ट। और इसके बाद ये कर्नाटका चिकमंगलुरु तुमकुरू बेल्ट थी, और इसके बाद महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। ये 4 बेल्ट हो गई हैं, और इनमें जो सेंटर्स हैं वो भी आपको याद रखने हैं। विच सेंटर्स आर देयर? सो दीज आर द सेंटर्स: मयूरभंज, गोवा, केंदुझर, हेयर दुर्ग इन बस्तर, एंड बेलाडिला, एंड आफ्टर दैट चंद्रपुर।
and here Tumkuru, Chikmagaluru, Kudremukh, Chitradurga, Bellary. This is the third belt, and after that Goa and Ratnagiri district in Maharashtra, Goa belt. और ये बताया था आपको कि ये पारादीप बेल्ट, पारादीप पोर्ट से एक्सपोर्ट होता है ये, और यहाँ से जो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र वाली बेल्ट से जो निकलता है ये विशाखापट्टनम पोर्ट से एक्सपोर्ट होता है. एंड दिस इज़ एक्सपोर्टेड फ्रॉम न्यू मंगलुरु बेल्ट, एंड महाराष्ट्र और गोवा बेल्ट जो है ये मारमागांव पोर्ट से इसको एक्सपोर्ट किया जाता है. इसके बाद हमने मैंगनीज़ पढ़ा था. मैंगनीज़ ये देखिए सुंदरगढ़ में है. इसके बाद में यहाँ पे मैकाला हिल्स में मिलता है. इसके बाद भंडारा में मिलता है और इसके बाद आपका शिवमोगा में मिलता है. तो यहाँ पे दीज आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मैंगनीज. नॉन फेरस मिनरल जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है वो नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं. इसके बाद में नॉन फेरस मिनरल्स हैं जिसमें कॉपर का सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद बॉक्साइट आता है. तो चलिए देख लेते हैं एक बार जल्दी से. कॉपर सबसे पहले फीचर्स दे रखे हैं इसकी. कॉपर कैसा होता है? मेलेबल होता है, डक्टाइल और गुड कंडक्टर होता है. तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल आइटम्स बनाने में यूज़ किया जाता है. कॉपर इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज. बालाघाट माइंस याद रखना है. 3 यहाँ पे मैं आपको सेंटर बता रहा हूँ जो बुक में है. बालाघाट माइंस मध्य प्रदेश में है, खेतरी राजस्थान में है और सिंहभूम झारखंड में है. तीनों ही कॉपर के काफ़ी अच्छे जो है माइंस यहाँ पे हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रोडक्शन होता है. तो आपको याद रखना है कॉपर. 3 बेल्ट्स आर देयर. बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम निकलता है. दिस इज द ओर फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम, और ये काफ़ी हल्का होता है, अच्छा कंडक्टर होता है, इसलिए इसको आयरन ओर की जगह भी यूज़ किया जाता है और कॉपर की जगह भी इसको यूज़ किया जा सकता है. एंड दिस इज वेरी रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स. बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स, जो कि एल्यूमिनियम सिलिकेट्स में काफ़ी रिच होती हैं. Aluminium is an important metal because combines the strength of metals such as iron with extreme lightness. यानी कि हल्का होता है और इसके अंदर मेटेलिक फीचर्स काफ़ी अच्छी होती हैं. मेलेबिलिटी भी होती है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है ये. इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन द अमरकंटक प्लेटू, मैकाला हिल्स एंड प्लेटू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी. ये एरिया है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का जो है. इसके बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं एल्यूमिनियम के बारे में. नेपोलियन III ये फ्रांस का किंग था और इसने अपने बटन्स और हुक्स जो हैं वो एल्यूमिनियम के बनवा रखे थे. यहाँ तक कि उसके पास जो बर्तन थे, जब ये एल्यूमिनियम का स्टार्टिंग हुआ था उस समय की बात है, डिस्कवरी ऑफ एल्यूमिनियम, तो जो इसके स्पेशल गेस्ट आते थे उनको एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में खाना खिलाता था, और जो नॉर्मल गेस्ट होते थे उनको गोल्ड और सिल्वर के बर्तन में खाना खिलाता था. लेकिन उसके ठीक 30 ईयर्स के बाद ऐसी कंडीशन आ गई 1860 के आसपास में कि ऐसे इंसिडेंट देखने को मिली कि एल्यूमिनियम बाउल्स जो हैं वो भिखारियों के हाथ में दिखने लगे पेरिस के अंदर. राइट. सो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ एल्यूमिनियम इन द बिगिनिंग, बट लेटर व्हाट वाज द यूज ऑफ एल्यूमिनियम. दिस इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट एल्यूमिनियम. अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल अबाउट दिस वन. सो एक और फैक्ट आपका 2016-17 के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया था, उड़ीसा वॉज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, एंड पंचपाटमाली डिपॉजिट्स इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, ये उड़ीसा में ही है. मोस्ट इंपोर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट्स इन द स्टेट. तो इसलिए आपको रिवाइज करें आप इसको चैप्टर को, एंड वट एवर यू हैव द डाउट यू कैन आस्क मी बाय राइटिंग इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.